जब मैं when I was inside the Big Boss, I feel like I have seen this world outside. I would want to term it as the cruelty they did to me. And I tell you a very honest thing behind it. कि शायद मैंने कभी सोचा नहीं था घर में कि मैं अमाल के साथ काम करूंगी. And same अमाल ने भी कभी सोचा नहीं था that we will collaborate actually. चीज का starting जो है ना शुरुआत अमाल ने की. I tell you something for this like making a new beginning. It's him who started it only, and I really appreciate that. श्रेया घोषाल के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? You know, this will be a very understatement for her that she is very जानी मानी या उन्हीं से सब कुछ है. We have to agree with the fact that she is the Lata Mangeshkar of our era. If we talk about this specific show, I think we are still on conversation with the makers. And we have not come on a conclusion if we are going or not, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं उस डेट में. बातचीत तो चल ही रही है, काफी फिल्म्स की बातचीत चल रही है. एंड आई एम श्योर वी गोना स्टार्ट द शूटिंग ऑफ वन ऑफ देम रियल सून एंड यू ऑल विल गेट टू नो. इट्स लाइक गॉड हैज बीन काइंड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. It took me a lot to become this version of Farhana Butt. Very unbothered, unshaken, doesn't matter कौन क्या बोलता है, doesn't care about anything. It took me a lot, and इसमें 80% of the contribution is of the situations I have dealt in my life. हंगामा हो गया, हंगामा. अरे भाई ऐसा ही है, ऐसे ही थोड़ी ना बोल रही हूँ मैं कि हंगामा हो गया. बिकॉज हंगामा क्वीन हमारे साथ है. एक ऐसी लड़की है जो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही बोल्ड है, जो अपनी पर्सनालिटी उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस 19 में बहुत ही ऑनेस्टी से दिखाई, इमोशंस दिखाए, कंट्रोवर्शियल भी बहुत ज्यादा हुई, बहुत बैक, ठीक है. लेकिन पहली ऐसी कंटेस्टेंट थी जो घर से एविक्ट हुई थी और उसके बाद सीधा फर्स्ट रनर अप बनी. सो हेलो फरहाना, कैसे हो आप? Hi Muskan, I'm very well. How are you? Thank you so much for inviting me over. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. इट रियली मीन्स You're most welcome. सो लाइक भी हम स्टार्ट करते हैं. तो फरहाना, लाइक मेरा जो मतलब क्वेश्चन है आपका ये है कि आपकी जर्नी बिग बॉस 19 तक बहुत इंटरेस्टिंग थी. लाइक वी ऑल नो दैट एक्टिंग बैकग्राउंड, आपका कश्मीर से आना और रियलिटी टीवी तक का जो सफर था बहुत इंटरेस्टिंग रहा, ठीक है. लेकिन स्टिल बहुत से फैंस हैं या फिर हम भी ये जानना चाहते हैं कि अर्ली लाइफ में जो आपका मोटिवेशन रहा या फिर मतलब जो आपकी जर्नी रही वो अब तक की क्या रही है? So honestly, when people ask me about the motivation, Kiara, what's that thing that kept you going? So I tell you something Yes. very much reality about life, that life will not keep you motivated all the time. There are times when you feel like you quit everything. There are times when you feel like you don't want to be in this. You just want to go at some place where no one knows you. You just want to quit everything. There are times when you feel same in your life. But I believe that first of all, your mindset has to be very strong. Then it also depends what kind of people are around you, including your family, your siblings, mostly your parents, what kind of mindset they have. And if you talk about me in person, then I think I had a lot of situations which some other person will not take as motivation. Some other person will maybe take it as setback. But I changed every negative thing in my life as a motivation that will fuel me to go ahead and do something big. हम सबने देखा है मतलब कि आप मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है या इन शॉर्ट में अगर आज की लैंग्वेज में कहूँ जो आपका ऑरा है वो बहुत ही ज्यादा बोल रहा है. इवन मेरे को ऐसा लगता है एज अ गर्ल बहुत सी लड़कियों के लिए आप मोटिवेशन भी हो कि मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स आई बट आपको मतलब कभी हमने एज अ इमोशन नहीं देखा. आपने हर चीज को काफी बोल्ड तरीके से फेस किया है. तो एक होता है ना कि हाँ कुछ ऐसा रहा हो लाइफ में, कुछ चीजें हुई हो जिसकी वजह से आज आप इस तरीके से हो. If you talk about my life journey, तो मेरी life journey भी काफी similar रही है as compared to Big Boss. But it also comes down on your mindset again, on your personality, what kind of personality you have, what kind of situations you have been through. क्योंकि अगर हम experience की बात करें तो experience के लिए you need to have that foundation of your personality, that you will go through that whatever life gets you into. And if you ask me, I believe कि जब मैं when I was inside the Big Boss, I feel like I have seen this world outside. I would want to
term it as the cruelty they did to me on the first day when I was actually trying to be so nice. If you see that video when I was coming, and first my appearance in the assembly room when I was coming, I was so happy in a very jolly mood. I'm coming and sitting and looking around everyone, and then cut to all of them just nominated me to get evicted from the house. So I feel या like स्टिल ये बहुत बड़ी चीज है कि मतलब लाइक पहले इविक्ट हो जाना एंड देन वही बंदा लाइक रनर अप तक जा रहा है, तो इट्स अ बिग yeah, थिंग। कुछ ना क्योंकि वो कुछ तो तो बात वो मैंने होगी। एग्जैक्टली वो मैंने हम्म। तभी सोच लिया था कि नाउ आई हैव टू मेक दिस हिस्ट्री। अगर ये मेरे साथ या हुआ, दिस इज वेरी अनयूजुअल थिंग। नाउ इफ आई वोंट मेक इट अ हिस्ट्री, इट्स ऑल इन वेन। That was the moment when I thought, now I have to do something big in this house. And actually, when एग्जैक्टली। all these things happened to me, they evicted me and all. तो मुझे लाइफ में वो एक ख्याल है कि every time I tried to be good towards people, they gave me all the reasons not to be. And same happened to me in Big Boss. And then I was like, okay, so you asking for it, you get it. It was like that. ओके, सो फरहाना, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग की कि हंगामा हो गया, लाइक क्योंकि मतलब आपका ये जो गाना है ना, हंगामा क्वीन, मतलब ये जो रील हमने भी देखी या मतलब जिसने भी देखी, मतलब जिससे सुनो वो यही बोलता है कि ये गाना लाइक बना ही आपके लिए है। ठीक है, सारी चीजें आपसे मैच होती हैं। तो मतलब आपका वो पहला रिएक्शन क्या था जब आपने ये रील फर्स्ट टाइम देखी थी, कि मतलब आपको क्या लगा जब आपने देखा या सुना? एक ऐसा होता है कि आपकी ऑडियंस या आपके फैंस आपको सिंपली कोई गाना डेडिकेट करते हैं, दैट्स क्वाइट लाइक नॉर्मल, वेरी नॉर्मल थिंग। बट देन व्हेन इफ आई टर्म इट इन करेक्ट वेज, देन पीपल मेक समथिंग योर एंथम। एंड आई सी, एक तो हर जगह मेरी उस ऑडियो पे रील्स आ ही आ रही है, एंड देन अगर कोई हाँ, दूसरा सेलिब्रिटी उस पे रील डाल रहा है या कोई परफॉर्मेंस दे रहा है कुछ, उसका कमेंट सेक्शन पूरा मेरे नाम से भरा है। या तो इट फरहाना वाज, भट्ट, ऑल ओवर यस, फरहाना फरहाना फरहाना। या आई मीन that was that whole thing when I got to know on internet ki hangama and all that, people are liking me, people are going crazy. It was a mood booster for me because that time I was feeling a bit low because of the trophy and all that thing. But जब मुझे पता चला इन चीजों का, honestly I forgot everything that I thought I have lost, and it was like I must focus on what I have gained, and this is one of them. ट्रू ट्रू, ये तो है। सो फरहाना, लाइक अभी जो मतलब फैंस के बीच, बहुत से लोगों के बीच ये जो बज़ चल रहा है कि अभी जो आपका जो कोलैबोरेशन हुआ है अमाल मलिक के साथ, जो सॉन्ग्स में आप नज़र आए हो, तो मतलब उसका मतलब इनिशिएटिव किसने किया? मतलब वो स्टार्ट किसकी तरफ से हुआ था कि हाँ, साथ में करते हैं, या लाइक किसकी तरफ से It था? was Amal only. Amal, क्योंकि वो he's a music composer. Unless and until he's not interested to take anyone as heroine or anything, why would I go there like and act in it? So it was him only who was interested. And also last के कुछ weeks में I think हम बात भी कर रहे थे as music video के बारे में, हंसी मजाक में and all. Then it actually came out as a reality. And I tell you a very honest thing behind it, कि शायद मैंने कभी सोचा नहीं था घर में कि मैं अमाल के साथ काम करूंगी, and same अमाल ने भी कभी सोचा नहीं था that we will collaborate या actually यही outside. यही रीजन है कि लोग Yeah, मतलब जानना चाहते हैं, क्योंकि जर्नी हमने देखी आप लोगों की, ठीक है, एंड जब यहाँ पे गाना आया, ठीक है, तो इसलिए ना हम हाँ. ये जानना चाहते थे कि इनिशिएटिव मतलब ये चीजें हुई कैसे आखिर, मतलब कैसे? बिल्कुल एक तरीके से मैजिक हो गया ये तो। Yeah, so Amal is very professional person. He's not someone कि मैं इसके मैनेजर से क्यों बात करूं, मैं इसकी टीम से क्यों बात करूं. He directly approached my management कि हमें ऐसा करना है. मतलब Amal and me, वो हमारा नंबर तो पहले एक्सचेंज हुआ था, क्योंकि मेरे बहुत बार नंबर्स चेंज होते गए जब से मैं बाहर आई. एक महीने में I almost changed like 11 to 12 numbers because of due to ओ some माय reasons. गॉड। Yeah, ओके। so on and off हम कांटेक्ट थे, फिर जब तक मेरा कोई स्टेबल नंबर नहीं आया अभी तक, कांटेक्ट नंबर अभी तक, so that's how we got in contact. I'm in contact with very few people from Big Boss, but the thing is, the main reason behind we got in this collaboration is Amal's nature, his behavior towards me. I did a lot of mistakes. He did a lot of mistakes. We came together on same ground. We apologized. We are even very good to each other's family. The uncle is so nice and so good to me. Even same like my mother, she really admires Amal like her son. So it's like that, क्योंकि अमाल ने, और इस चीज का स्टार्टिंग जो है ना, शुरुआत अमाल ने की. I tell you something, for अच्छा। this like making a new beginning. It's him who started it only, and I really appreciate that. या Yeah, otherwise एग्जैक्टली। possible नहीं. Yeah, otherwise possible नहीं होता. But it's him, and even today वो मुझे बोलता है कि when I see all these reels inside from inside the house about you कि तुमने क्या किया है मेरे पीछे, जो कि उसको पता नहीं था, क्योंकि हम हमेशा एक दूसरे के सामने नहीं होते थे.
Literally, he tells हाँ me कि now I believe that you actually deserve to win the show, and now since it's like written in destiny, but the way you are there as first runner up, you deserve this. Today he tells me this कि मुझे तो पूरा पता नहीं था कि तुम क्या करेगी, तुम्हारा कैसा स्टांस रहता चीजों को लेके, but now that I see it, I'm personally really glad that we are together for this collaboration. It's gonna really go big. जो गाना आप लोगों ने साथ में किया है, आपने और अमाल ने, उसको गाया श्रेया Yeah. घोषाल ने, जो कि मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए अगर बोला जाए तो सब कुछ उन्हीं से है ना? तो उनके साथ आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब श्रेया घोषाल के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? You know, this will be a very understatement for her that she is very जानी मानी या उन्हीं से सब कुछ है. We have to agree with the fact that she is the Lata Mangeshkar of our era. And I Yeah, always exactly, believe this, and I have always exactly. been a big fan. Yeah, I हाँ, have been always a big, मैं big वही fan बोल of रही थी कि Shreya मतलब Ghoshal ji's voice. श्रेया घोषाल एवरीवन, मतलब बच्चे से लेके बूढ़े तक या हर एक, मतलब हर एक एज ग्रुप उनकी वॉइस सुनना चाहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ कोई एक पर्टिकुलर पर्सन उनका एक एज ग्रुप उनका फैन है, ऐसा नहीं है, हर कोई उनके गाने सुनना चाहता है। तो उनकी Exactly. I'm I'm sure. I mean, ये तो मेरे लिए सोने पे सुहागा हो गया कि I'm doing first music video. I mean, first project you can say after Big Boss जो या release होने वाला है पहले actually, and it'll be with Amal Malik, and knowing the our rivalry journey from Big Boss house, and again then it's with Shreya Ghoshal. It really holds a lot of weight for me, and it's really worth, I think, all the efforts, all the struggle I have done in my life. I actually always celebrate even small step of my success. And honestly मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि जिन इंसानों की नियत साफ होती है, दिल साफ होता है, हाँ they always get good and wonderful surprises from the universe. I think this is one of them. या ट्रू ट्रू एग्जैक्टली। सो लाइक अभी आपने बिग बॉस 19 में तो आप रनर अप गए, ओके? तो क्या फरहाना ये सोचती हैं कि वो खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शो का ट्रॉफी अपने नाम करवाएंगी, या इन फ्यूचर वो जाने वाली हैं खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शोज में? See, a lot of people are interested to see Khatron Ke Khiladi, and या वी ऑल आर इंटरेस्टेड, वी ऑल आर इंटरेस्टेड। yeah, I know, and even that's a very interesting देखना format चाहते of. हैं भाई, हम तो देखना चाहते हैं, हम तो देखना चाहते हैं बिकॉज लाइक योर पर्सनैलिटी, मतलब पर्सनली इफ Yeah, मैं अपनी बात करूं, लाइक पर्सनली आई एम वेरी इंस्पायर्ड फॉर यू, मतलब फ्रॉम यू, लाइक योर so nice, एवरीथिंग, बहुत ज्यादा पर्सनली। so nice of तो you. So, Khatron Ke Khiladi, if we talk about this specific show, I think we are still on conversation with the makers, and अच्छा we have not come on a conclusion if we are going or not, क्योंकि हमारे बहुत सारे projects lined up हैं उस date में जब खतरों will start. But definitely I'll try to figure out what will be there. And also the other reason that I don't want to get myself into reality shows only. I am primarily an actor, yeah, an actor, model. वैसे model तो बहुत कम बुलाती हूँ मैं खुद को, an actor, because I have done my diploma यू आर degree and मल्टी theatre and टैलेंटेड, all. So I just want यू to. आर मल्टी टैलेंटेड। My funda in life is that I don't want to become like jack of all trades and master of none. So I would rather focus on one thing which will keep my soul happy, and that's acting. So yeah, we are on conversations with the makers, and my management is also discussing what can be done if we shall go in this, how it's, because if I go into it, we also have to look at the aspect how it's adding value to my personality or my name or the person I am or to my future. So definitely whatever it will be, if I'm going, or either ways if I'm not going, it will be out there in the public. या फरहाना, वन क्वेश्चन, लाइक पब्लिक जो है, मतलब हम किसी भी रियलिटी शोज में जाते हैं तो जो भी रील्स हैं, जो भी चीजें बाहर आती हैं, पब्लिक वही देखता है और उसी पे अपने रिएक्शन देता है, ठीक है? एंड पब्लिक रिएक्शन बहुत मतलब डिवाइडेड भी रहता है, क्योंकि कई बार ये होता है कुछ फैंस हमें सपोर्ट कर भी रहे होते हैं और किसी का फीडबैक काफी टफ भी होता है हमारे लिए, है ना? तो ऐसे मतलब मिक्स्ड फैन रिएक्शन जब आप अपने लिए देखते हो तो उस चीज को आप किस तरीके से डील करते हो? I'm actually happy with that. I don't like people pleasing me all the time. I don't like, मुझे ज़्यादा this is the thing about me. I don't like people doing a lot of तारीफ about me. मुझे अपनी ज़्यादा तारीफ सुनना पसंद नहीं है. Honestly, even on set या कहीं भी मैं irritate हो जाती हूँ. मेरी ज़्यादा तारीफ कोई करेगा तो. And same wise, I would want to have people around with me who will have different thoughts. Probably because I'm used to criticism. I can take critics. I don't have problem with that.
And so I don't see it in a different way. If someone else, if there is a person out there, even probably from my fandom, and he or she is having a different thought regarding something, most welcome. Why would I say कि नहीं जो मैं बोलूंगी, it's not a dictatorship कि जो मैं बोलूंगी तो मैं वही बोलना है. लोगों के अपने या ख्यालात हो एग्जैक्ट सकते हैं. We are always welcome with that. ओके। तो लाइक क्या हंगामा क्वीन को हम बॉलीवुड की किसी फिल्म में मतलब फिल्मों में देखने वाले हैं, या फिर इस तरीके से कोई बिल्कुल बातचीत चल रही है कि आपने कोई बॉलीवुड मूवी बिल्कुल साइन बिल्कुल की हो या इंशाल्लाह. बातचीत बातचीत तो चल ही रही है. काफी फिल्म्स की बातचीत चल रही है. एंड ओके आई एम श्योर वी गोना स्टार्ट द शूटिंग ऑफ वन ऑफ देम रियल सून. एंड यू ऑल विल गेट टू नो. इट्स लाइक गॉड हैज बीन काइंड. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. या एग्जैक्टली Whatever. मतलब मैं तो पर्सनली भी बहुत खुश होंगी, और मतलब आपके जितने फैंस हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि Yes, लाइक yes, yes, बॉलीवुड it's a big में। news. तो It's a मतलब big कब news. तक ऐसा कुछ है लाइक आपकी मूवी कब तक आने वाली है, या कब तक आने आएगी? वाली को तो स्टार्ट तो हो जाए शूटिंग. आने वाली का फिर वो बस उस हिसाब से बताएंगे. ओके लेट्स आई ओके थिंक प्रोबब्ली एंडिंग अप्रैल और स्टार्टिंग मई. इट्स लाइक ओके दैट. ओके अप्रैल से मतलब ओके ओके। सो फरहाना, अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना? और इस बीच में आपसे बात होना, तो एक क्वेश्चन तो मतलब बनता है इसके ऊपर, है ना? पूछिए क्योंकि पूछिए. हमने ना बहुत सुना है कि आपकी लाइफ में ना प्यार तो है, प्यार आता है भी, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं कि हाँ प्यार नॉक नॉक भी करता है कि हाँ फरहाना मैं हूँ, अगर इन शॉर्ट में ऐसे बोलूं। लेकिन हमें चाहिए नहीं. हाँ एग्जैक्टली exactly, यही कि आप नहीं घुसने देते हो। तो मतलब ऐसा हाँ हम क्यों है? अगर वैलेंटाइन वीक में ऐस- आप बता दो हमें, तो ये एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी कि मतलब ऐसा क्या है रीजन, क्योंकि ये तो है कि प्यार तो बहुत है, लोग हैं ऐसे जो आपके बहुत फैन है, मतलब बहुत लोग प्यार भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या है रीजन, आप गेट मुझे से ही बहुत भगा देते हो उन्हें? एक्चुअली मुझे अपने अलावा बहुत कम लोगों की कंपनी पसंद है. So for me, it can never. I'm sure it can never be in zillions मतलब of यू years. आर It लाइक can द never मी be love टाइप, at मतलब first सिर्फ sight. ओनली यू लव योर सेल्फ। Yeah, of course I do. Like no doubt in that. But the thing is that I will never be a person who will go for love at first sight. Never, because I want to see how the person thinks. How what is the aura of a person? What he thinks about me. A lot of like, if I will start speaking about, then I will go like hours and hours. So it's complete. When you talk about dating and relationship and all, I don't take these things very lightly. I take these things very seriously because if I'm dating someone, I would want to marry that person. I would not want to date someone just because मैं single हूँ या मुझे Valentine पे कुछ तमाशा करना है. So I would not really want to do that. This Valentine, I'm my only priority, and I will take myself out on dinner. I will, treat myself, do whatever that will make me happy. That's it. Those are all the plans I have as of now. ओके। फरहाना, लाइक बिग बॉस में जो एंट्री होती है वो सबके लिए काफी चैलेंजिंग होती है ना? लाइक पहले फिर Hmm. एविक्ट होना, फिर उसके बाद मतलब वापस से एंट्री करना और रनर अप होना, और यहाँ पे आपने ये भी बोला है कि ये सीजन आपका था, है ना? तो इस चीज को आपने मतलब किस तरीके से मेंटली हैंडल किया, लाइक जो इस बीच का ये टाइम था एक तरीके से देखा जाए, तो इसको किस तरीके से आपने मैनेज किया सारी चीजें? ऐसा कुछ माइंड में था, या कभी कुछ ऐसा हुआ है लाइक जिसकी वजह से आप मतलब इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कभी हमने बिग बॉस 19 में आपको ना इमोशनल देखा, या कभी टूटते हुए भी नहीं दिखा, इवन मैं बोलूँ तो? One thing about my mindset is मैं बहुत quickly move on करती हूँ situation से. मतलब I whatever is done, it's done and dusted. I move on like and my move on game is very strong. और मैं ज्यादा I don't dwell on to कि क्या हो गया, ये तो ऐसे होना चाहिए था, वैसे क्यों हो गया. Because I believe ऐसे जो है आप अपना एक तो mental health खराब करते हो और आप अपना ही time waste करते हो वैसे. Because if it's done, if whatever you think you can't redo it, nothing about it can be done in a different way. If you still keep thinking about it. तो मुझे लगता है कि मुझ पे बहुत चीजों का कम असर पड़ता है. एज लॉन्ग इट इज समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट और समथिंग वेरी वेरी पर्सनल. पीपल हु डोंट नो मी, पीपल हु आई डोंट नो, दे डू वट एवर दे वॉन्ट डू विद मी. इट व्हाई वुड इट इफेक्ट मी? दे डोंट नो मी पर्सनली. मैं किसी को या इतना सीरियस क्यों लूं जो मुझे पर्सनली जानता ही नहीं है. यू नो तो आई हैव दैट काइंड ऑफ माइंड सेट. आई डोंट टेक एवरीवन सीरियसली. आई डोंट टेक एवरीथिंग सीरियसली. आई मूव ऑन वेरी क्विकली. मैं चीजों को, अगर कोई चीज गलत भी हो जाए, मतलब एक्सट्रीम गलत भी हो जाए जो मेरे लिए सही नहीं थी, गलत थी और मेरी ही गलती है उसमें, मैं तब भी ओवरथिंक नहीं करती है. मेरा ऐसा होता है कि नुकसान हो गया तो हो गया, बस ठीक है, लेट्स मूव ऑन. जो होना था वो, बिकॉज आई बिलीव वट एवर इज
happening, it's written in by the universe. आप कोई चीज change या नहीं कर सकते. अगर आप एग्जैक्टली कभी कोशिश सही पहले पहले कुछ अगर आप 5-6 साल पहले पूछेंगे तो मैं बहुत ही रिजिड थी चीजों को लेके कि ये ऐसा था क्यों नहीं हुआ, वो ऐसा था क्यों नहीं हुआ, अगर मैंने ये सब कुछ किया फिर भी ऐसा क्यों हुआ. बट टुडे आई हैव ग्रेट एक्सेप्टेंस ऑफ थिंग्स. आई बी लाइक कि अगर ये ऐसा एग्जैक्टली होना है मतलब चाहे मैं. मेन जो हाँ वही चीज है कि मतलब इंसान की लाइफ में ना ऐसा एक टाइम आता है या कुछ होता है जिसकी वजह से इंसान को बदलना पड़ता है तो हमें भी ऐसा यस. लगता है कि मतलब आप शुरू से ही ऐसे हो या ऐसा कुछ हुआ आपकी लाइफ में कि मतलब इतनी चीजें होने के बाद भी हमने जब भी आपको देखा है आप मतलब बिल्कुल अलग ही लेवल के बोल्ड होके ही निकलते हुए दिखे हो हमें तो पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है आपने या मतलब ऐसे ही हो मेरा एक तो आई टेल यू समथिंग, द फाउंडेशन इट नीड्स दैट्स योर माइंडसेट कि आपका माइंडसेट कैसा है. एंड या देन ये it took me a lot to become this version of Farhana Bhatt. Very unbothered, unshaken, doesn't matter कौन क्या बोलता है, doesn't care about anything. It took me a lot, and इसमें 80% of the contribution is of the situations I have dealt in my life. So I think those situations have on times maybe they were not good for me. They were very exhausting. I was not keeping well with them, but I think they left me with great experiences. A lot of people tell me, that Farhana, you are way too mature than your age. And some people literally tell me कि इतना mature होना अच्छी नहीं होता, अच्छी बात नहीं होती इस age में. Then I be वही like, मैंने बोला हर okay. इंसान के दो पहलू होते हैं कोई कहता है ये अच्छा है कोई कहते हैं बुरा है वही चीज है इसलिए हम जानना चाहते थे कि मतलब आप मतलब मेरे को भी ये जानना था कि ऐसा मतलब कैसे है क्योंकि बिग बॉस 19 हमने पूरा देखा है Hmm. इवन बहुत से फैंस ने सबने देखा है तो हर बार आपको इस तरीके से देखना तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि हम जाने कि ये बंदा ऐसा क्यों है किस लिए है ऐसा ही है You या have किसी to. किसी कुछ रीजन The only small, I won't call it mantra, like it's what I believe in my life, is that you have to master the art of letting go. The art of knowing is to know what to ignore. And in other words, we can say you should let go of everything because nothing in this world belongs to you. Just keep that in ये your बहुत से mind कि लोगों ये के लिए बट मंत्रा हो गया आपकी जो ये बात है लेकिन ये बहुत से लोगों के मंत्रा हो जाएगा उनको if ये you चीजें if you मतलब understand this now, actually if you हाँ understand this and you act on this, no, your life will become way too more easy, very easy. एग्जैक्ट ये तो है ओके सो लाइक फरहाना लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो भी यंग आर्टिस्ट है या फिर जो आपके फैंस हैं उनके लिए आप मतलब क्या कहना चाहोगे या कोई एक मैसेज हो जो आप उन्हें देना चाहो See, I know if you talk about from the perspective of artists, then guys, the consistency is the only key. But एक उसमें कभी कभी ऐसा वक्त आता है आपकी लाइफ में जहाँ आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है या फिर आप बहुत सोचे समझे कोई भी रास्ता चुन लेते हो. The genre you're working in as an artist as well, your genre, your working style, your ethics, it really matters to take you ahead. क्योंकि अगर आप कुछ भी करके कल को फेमस हो भी जाते हो फिर आपका genre क्या बन रहा है आपको वो भी देखना है. You have to be very patient with your work. Very, very much. Art, when you say it's a work of art needs time. It needs patience. It needs consistency. You will encounter a lot of times, a lot of bad times where you feel like, बस अब हो गया, अब मुझे quit करना चाहिए, अब नहीं हो रहा. That's the time when you are supposed to hold on to it. So just believe in yourself. And when I say believe in yourself, it's not just for the sake of it. Believe that one day, believe that why you are doing this, because probably there is a future that's waiting for you. Why you started. Every time you feel like, oh, I should not do this, like I can't do it anymore or anything like that. Just sit down for a while, close your eyes and think about the thought that why you started, when you started it. क्योंकि मुझे लगता है just not because मैं कश्मीर से आती हूँ, काफी लड़कियों के लिए फिल्म इंडस्ट्री चूज करना बहुत मुश्किल होता है. बी देयर बैकग्राउंड एनीथिंग बहुत मुश्किल होता है. तो अगर आपने स्टार्ट किया, आप लोगों के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं गए हो, तो आपको वो थॉट याद करना है कि मैं उस टाइम पे तो अपने लिए खड़ी रही ना, क्या आज क्विट करने के लिए खड़ी हुई थी. Just think like that. I mean, motivate yourself. You're the only person who can motivate yourself. And about my fans, yeah, what do I say? They are going good. They know what to do. They have understood the assignments.
हाँ, बिकॉज Yeah, आफ्टर that's दैट it. इंटरव्यू लाइक उन्हें बहुत सारे गुड न्यूज मिलने वाले हैं। पहली बात तो यही बड़ी बात है कि आप बॉलीवुड की मूवी आपने मतलब अप्रैल Yeah, से yeah. शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो वो तो क्रेजली बिल्कुल वेट करेंगे, तो इसलिए उनके लिए तो Yes, कुछ yes. तो बनते हैं। वो तो उनके लिए भाई दे सेलिब्रेट माई एवरीथिंग, एवरीथिंग दे सेलिब्रेट। हाँ कुछ भी मैं एग्जैक्टली अपनी हमने बिग ग्लिम्स। बॉस 19 के मतलब दौरान देखा है, बहुत उन्होंने आपको सपोर्ट भी किया है आपके फैंस ने। Of course, I mean उन्हीं का तो सपोर्ट था that I reached to you know first runner up. It was because of them only, and no one else could have done it. And at the same time, I believe that I think the only sort of the well-wisher I have in my life is just them, because I have seen them. मेरी अब की और पहली लाइफ में बस यही फर्क है, I have got some not a big deal of supporters. पहले भी I had haters, I had people who want to pull me down. Today I also have some people around there who doesn't have any other work to do. But the difference is that now it's not me who has to deal with it directly. Now it's people who are not letting anything to come to me, and ओके, we तो call them rebellions. फरहाना लाइक हम लाइक थोड़ा सा छोटा सा एक रैपिड फायर रखते हैं। मैं आपसे 5 Okay. क्वेश्चंस पूछूंगी, ओनली यू हैव टू गिव इन वन वर्ड आंसर्स। ओके Okay. ओके लाइक ऐसी कोई हैबिट जो आप मतलब क्विट करने का सोच रहे हो? Late night जागना, 3-4 बजे सो. Really want to quit. I was today only talking to my friend that we need to change this at any cost. ओके एंड लाइक आपको इंस्टाग्राम फेम जरूरी है या फिर रियल लाइफ पीस? No, both of दोनों। them. Yeah, because Instagram fame can never mess with my real life peace. So both are important for me simultaneously. एंड लाइक थर्ड वन इज लाइक बिगेस्ट मिथ अबाउट फरहाना भट्ट, जो आपने भी सुना हो या है ऐसा कुछ, तो प्लीज हमें भी बताओ। यही कि फरहाना बट गालियां देती है, वही तो सबसे बड़ा आप गाली मिथ है. हर एक इंसान गाली देता है मुझे. अगर आप बोलो मुझे गालियां पता है और गालियां मुझे आती भी है, बट मैंने अभी तक दी नहीं है ना, मैंने कभी बिग बॉस में दी है. दिस इज द बिगेस्ट मिथ अबाउट पीपल कि गालियां देती है एंड ऑल दैट. तो उनको शायद लाइव आखिरी कुछ दिनों के लाइव उनको अच्छे से देखना चाहिए, उनको पता चलेगा कि असली गालियां किन्होंने दी है. इट वॉज नेवर मी. Anyways, I was never bothered with this fact. I was never bothered with this fact. But just to make it clear that I have never done that on the show. ओके एग्जैक्टली लव का सीजन चल रहा है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब फर्स्ट लाइक क्या आता है, लव आता है या करियर? मेरे Career. हिसाब से तो करियर यार। Career. It's a करियर mic drop question, but the answer is already known. या एवरीवन। ओके लाइक वन एडवाइस यू वुड गिव टू योर यंगर सेल्फ, अगर ऐसा कुछ हो। I don't think my younger self was the reason who I am today. My younger self never needed any advice or suggestion or anything. ओके या वेल थैंक यू सो मच फरहाना फॉर गिविंग योर टाइम। You're मतलब most लाइक आपकी जो ऑनेस्टी और बोल्डनेस ने सच में ऑडियंस के लिए बहुत मैसेज दिया है कि मतलब हमें किस तरीके से फियरलेस रहना है, अपनी yeah, इंडिविजुअलिटी को कैसे एम्ब्रेस करो, ठीक है। और अपनी जो अपने absolutely. जर्नी बताई है ना, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। लाइक थैंक यू फॉर Thank you. शेयरिंग योर स्टोरी, थैंक यू सो You're मच। most welcome. Most welcome.